دنیا بھر کی کہانیوں کے اردو ہندی ترجمے سننے کے لیے آج ہی ہمارا چینل ترجمہ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ جان جیونو کی کہانی پیڑ اگانے والا، انگریزی سے ترجمہ اجمل کمال۔ کسی آدمی سے سچ مچ غیر معمولی خصوصیات کے ظہور کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سرگرمی کا طویل عرصے تک مشاہدہ کیا جائے۔ اگر یہ سرگرمی خود غرضی سے مکمل طور پر پاک ہو، اگر اس کو تحریک دینے والا خیال اپنی سخاوت میں منفرد ہو، اگر یہ بات پوری طرح یقینی ہو کہ اس کا مقصد کبھی کوئی انعام حاصل کرنا نہیں رہا، اور اس سرگرمی نے دنیا پر محسوس کیے جانے والے اثرات مرتب کیے ہوں، تب کسی غلطی کے امکان کے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ تقریباً 40 سال پہلے میں ایک طویل سفر پر نکلا تھا، پاپیادہ بلندی کی طرف جانے والے ان راستوں سے ہوتا ہوا جو سیاحوں کے لیے بالکل اجنبی ہیں اور اس قدیم خطے کا حصہ ہیں جہاں کوہ آلپس پرووانس کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ یہ علاقہ جنوب مشرق اور جنوب میں دریائے دیورانس کے درمیانی حصے سے جو سیسیترون اور میرابو کے درمیان واقع ہے، شمال میں دریائے دروم کے بالائی حصے سے جو اس کے آغاز سے دائی کے مقام تک پھیلا ہے، اور مغرب میں کونتاک وینیسا کے میدانوں اور مو وینیتوں کے کوہستانی سلسلے کی نیچی پہاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس علاقے میں باس آلپس کا تمام تر شمالی حصہ، دریائے دروم کے جنوب کا پورا رقبہ اور ووکلوس کا چھوٹا سا حصہ شامل ہے۔ جب میں سطح سمندر سے 1200-1300 میٹر بلند اس غیر آباد علاقے سے ہوتا ہوا اپنی آوارہ گردی پر نکلا، تب یہ محض ایک خالی بیابان تھا جو جنگلی لیونڈر کے سوا کسی بھی قسم کی روئیدگی سے خالی تھا۔ میرا ارادہ اس میدان کو اس کی انتہائی چوڑائی کے مقام سے عبور کرنے کا تھا، اور 3 دن کی مسافت کے بعد میں نے خود کو ایک ایسے مقام پر پایا جو اپنی ویرانی میں بے مثال تھا۔ میں نے غیر آباد گاؤں کے باقی ماندہ ڈھانچے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ مجھے گزشتہ روز سے پانی نہ ملا تھا اور پانی تلاش کرنا میرے لیے اشد ضروری تھا۔ اگرچہ مکانات جو کسی پرانے بھڑوں کے چھتے کی طرح ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے، کھنڈر ہو چکے تھے، پھر بھی انہیں دیکھ کر مجھے خیال ہوا کہ آس پاس کوئی چشمہ یا کنواں ضرور رہا ہوگا۔ چشمہ وہاں ضرور تھا لیکن خشک پڑا تھا۔ 5 یا 6 بے چھت کے مکان جو ہوا اور بارش کی زد میں رہ کر شکستہ ہو چکے تھے، اور ایک چھوٹا سا گرجا گھر جس کا برج گر چکا تھا، بالکل اس ترتیب میں بنے ہوئے تھے جس ترتیب میں زندہ لوگوں کے گاؤں میں ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی زندگی نہ تھی۔ یہ جون کا ایک خوشگوار دھوپ بھرا دن تھا، لیکن ان بے گیاہ بلندیوں پر جن کے اوپر کھلا آسمان تھا، تیز ہوا سفاکی کے ساتھ چل رہی تھی۔ مکانوں کے کھوکھلے ڈھانچوں میں سے اس کے طاقت کے ساتھ گزرنے کی آواز کسی ایسے درندے کی غسیلی دہاڑ سے مشابہ تھی جس کے شکار کیے ہوئے جانور کے کھانے کے عمل میں کسی نے خلل ڈالا ہو۔ مجھے آگے بڑھنا پڑا، لیکن 5 گھنٹے تک متواتر چلنے کے باوجود مجھے پانی کہیں نہ ملا، اور نہ آگے چل کر اس کے ملنے کے آثار دکھائی دیے۔ ہر طرف وہی خشک زمین، وہی سخت گھاس تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ فاصلے پر ایک چھوٹی سی سیاہ شبیہ دکھائی دے رہی ہے۔ میں نے اسے کسی اکیلے اگے ہوئے پیڑ کا تنا سمجھا، لیکن پھر بھی قسمت آزمانے کے لیے میں اس کی سمت چل پڑا۔ وہ ایک چرواہا تھا۔ کوئی 30 بھیڑیں پاس ہی تڑفی ہوئی زمین پر پڑی سستا رہی تھیں۔ اس نے مجھے اپنے مشکیزے میں سے پانی پلایا اور پھر کچھ دیر بعد مجھے اپنے باڑے میں لے گیا جو ایک غار میں چھپا ہوا تھا۔ پانی جو انتہائی لذیذ تھا، وہ اپنے لیے ایک نہایت گہرے قدرتی کنویں سے نکالتا تھا جس کے اوپر اس نے ایک بہت سادہ سی مینڈ بنا لی تھی۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ یہ بات ان لوگوں میں عام ہے جو تنہا رہتے ہیں، لیکن اس کے انداز سے پر اعتماد اور خود مکتفی ہونے کا اظہار ہوتا تھا، جو ایسی ویران جگہ پر حیرت کی بات تھی۔ جہاں وہ رہتا تھا وہ جگہ کوئی جھونپڑی نہیں بلکہ پتھر کا بنا ہوا ایک سچ مچ کا مکان تھا۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ اس نے اس کھنڈر کی کہاں سے کہاں مرمت کی ہے۔ چھت مضبوط تھی اور بارش سے حفاظت کرتی تھی۔ ٹائلوں سے رگڑ کھا کر گزرتی ہوا ایسی آواز پیدا کرتی تھی جیسے ساحل پر سمندر کا شور۔ مکان اندر سے صاف ستھرا تھا، دھلائی کی ہوئی، فرش پر جھاڑو دی ہوئی اور چرواہے کی بندوق میں صاف کر کے تیل دیا ہوا۔ اس کا شوربہ آگ پر پک رہا تھا۔ اب میں نے دیکھا اس کی داڑھی تازہ منڈی ہوئی تھی، اس کے لباس کے تمام تکمے مضبوطی سے ٹکے ہوئے تھے
और कपड़ों की मरम्मत इतनी बारीक बीन एहतियात के साथ की गई थी कि वो आसानी से दिखाई न देती थी। उसने मुझे अपने शोरबे में शरीक करने पर इसरार किया और बाद में जब मैंने उसे अपना तंबाकू का बटुआ पेश किया तो उसने बताया कि वो तंबाकू नहीं पीता। उसका कुत्ता उसी की तरह खामोश, चुमकारे जाने की तवक्को किए बगैर दोस्ताना अंदाज में बर्ताव करता था। ये पहले ही तय हो चुका था कि मैं रात वहीं गुजारूंगा। अगला गांव वहां से पैदल 1.5 दिन की मसाफत पर वाक़ था। अलावा अजीम मैं जानता था कि उस खित्ते में इक्का दुक्का मिलने वाले गांव कैसे होते हैं। इस किस्म के सिर्फ 4 या 5 गांव थे जो उन ढलानों पर इधर उधर बिखरे हुए थे। वो शायद बलूत के झुंडों के बीच वाक़ थे जहां पहुंचकर इस्तेमाल के काबिल सड़क खत्म हो जाती थी। ये गांव कोयले जलाने वालों से आबाद हैं। जिंदगी वहां बेहद दुश्वार है। ऐसे मौसम में जो गर्मी सर्दी एक साथ सख्त रहता है, खानदान एक मकाम पर गुथे हुए रहते हैं और बाहम टकराने वाली अना परस्ती से पैहम सुलगा करते हैं। फरार की ख्वाहिश इस कदर बेताबाना और न मिटने वाली है कि उनके अजायम वहशियाना हदों तक फैल जाते हैं। वहां के मर्द अपनी गाड़ियों में कोयला लाद कर शहर जाते हैं और फिर वहां से गाड़ियों ही में वापस आते हैं। मजबूत तरीन किरदार का मालिक शख्स भी इस मुतवातिर तजाद के दबाव में रहकर रेजा रेजा हो जाता है। औरतें घरों में रहकर बुख्स पालती हैं। हर शय कोयला फरोशी से गिरजा घर की बेंच तक जुदा जुदा और एक दूसरे से मुतहारिब, बुराइयों से लेकर बदी और नेकी के अमूमी आमेजे तक एक जिद्दी तकरार और रकाबत का सबब बनी रहती है। सुकून का कोई वजूद नहीं और इस सब पर मुस्तजाद उतनी ही जिद्दी हवा के झक्कड़ हैं जो हर शख्स के आसाब को पारा पारा किए देते हैं। खुदकुशी की वबाएं आती हैं और जुनून के दौरे पड़ते हैं जो अमूमन किसी की जान लेने पर खत्म होते हैं। तंबाकू न पीने वाला चरवाहा जाकर एक छोटा थैला लाया और उसमें से बलूत के बीज निकालकर मेज पर ढेर कर दिए। फिर वो उनका गौर से जायजा लेने और अच्छे और खराब बीजों को एक दूसरे से अलग करने लगा। मैं अपना पाइप पीता रहा। मैंने उसे मदद की पेशकश की मगर उसने कहा यह काम उसे खुद ही करना है और ये देखते हुए कि वो किस कदर एहतियात से काम कर रहा है मैंने इसरार नहीं किया। हमारे दरमियान बस इतनी ही गुफ्तगू हुई और जब उसके सामने बलूत के अच्छे बीजों का एक खासा बड़ा ढेर इकट्ठा हो गया तो उसने उन्हें 10-10 की छोटी ढेरियों में तकसीम किया। ऐसा करते हुए उसने उन बीजों को अलग कर दिया जो या तो बहुत छोटे थे या जो बीज से चिरे हुए थे। उसने उनको निहायत गौर से देखा। जब वो 100 बिल्कुल दुरुस्त बीज जमा कर चुका तो उसने काम रोक दिया और सोने चला गया। उसकी सोहबत में रहना बहुत पुरसुकून था और अगली सुबह मैंने दरियाफ्त किया कि आया मैं पूरा दिन वहां रुक कर आराम कर सकता हूँ। उसको यह बात बिल्कुल फितरी मालूम हुई या उसने मुझे यही तासुर दिया कि उसे किसी चीज की परेशानी नहीं है। मुझे आराम करने की कोई अशद जरूरत न थी, लेकिन मैं मुतजस्सिस था और मजीद जानना चाहता था। उसने अपने रेवड़ को बाड़े से बाहर निकाला और चरागाह की तरफ ले गया। रवाना होने से पहले उसने वो छोटा थैला निकाला जिसमें एहतियात से चुने और शुमार किए हुए बीज रखे थे और उसे पानी की बाल्टी में डुबो कर गीला कर लिया। मैंने देखा उसने अपने हाथ में लाठी के बजाय फौलाद की एक सलाख ले रखी थी जो मर्दाना अंगूठे के बराबर मोटी और कोई 1.5 मीटर लंबी थी। वो उसके मुतवाजी रास्ते पर किसी फारिगुल बाल शख्स की सी बेनियाजी जाहिर करता हुआ चलता रहा। उसने अपनी भेड़ों को एक वादी के पास ले जाकर चरने के लिए छोड़ दिया और अपने कुत्ते को उनकी निगरानी पर मामूर कर दिया। फिर वो उस तरफ आया जहां मैं खड़ा था। मुझे खौफ था कि वो मेरी खलल अंदाजी पर एतराज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे खुद ही उस तरफ आना था और उसने मुझे दावत दी कि अगर मुझे कोई और काम ना हो तो उसके साथ चलूं। अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर उसने अपनी फौलादी सलाख से जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाने शुरू किए और हर गड्ढे में एक एक बलूत का बीज डालकर उसे मिट्टी से ढांपता चला। वो बलूत के पेड़ लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या ये जमीन तुम्हारी है? उसने कहा, नहीं। क्या तुम जानते हो इसका मालिक कौन है? वो नहीं जानता था। उसके ख्याल में ये मुश्तरका इस्तेमाल की जमीन थी या फिर ऐसे लोगों की मिल्कियत थी जिन्हें उसे कोई दिलचस्पी न थी। उसे भी ये जानने से दिलचस्पी न थी कि उस जमीन के मालिक कौन लोग हैं और इस तरह उसने अपने 100 के 100 बीज जमीन में बो दिए। दोपहर के खाने के बाद वो बोने के लिए मजीद बलूत के बीज इकट्ठे करने लगा। मैंने अपने सवालों पर बेहद इसरार किया होगा, तभी उसने उनका जवाब दिया। वो उस वीराने में 3 साल से पेड़ उगा रहा था।
اس نے اب تک 1,00,000 پیڑ لگائے تھے، ان میں سے 20,000 بڑے ہونے لگے تھے۔ ان 20,000 میں سے بھی اس کا خیال تھا کہ آدھے چوہوں کے ہاتھوں یا تقدیر کے انجانے طریقوں کے باعث ضائع ہو جائیں گے۔ پھر بھی اس جگہ جہاں پہلے کچھ نہیں تھا بلوط کے 10,000 پیڑ اگائیں گے۔ اس موقع پر مجھے خیال آیا کہ اس کی عمر کیا ہوگی۔ یہ بات ظاہر تھی کہ وہ 50 برس سے زیادہ کا ہے۔ 55 سال اس نے بتایا۔ اس کا نام الزیار بوفیہ تھا۔ کبھی اس کا میدانی علاقوں میں ایک فارم تھا، اس کی بیشتر زندگی وہیں گزری تھی، لیکن پہلے اس کا اکلوتا بیٹا جاتا رہا، پھر بیوی بھی مر گئی۔ تب وہ تنہا رہنے کے خیال سے یہاں چلا آیا تاکہ اپنی بھیڑوں اور اپنے کتے کے ساتھ کسی اجلت کے بغیر زندگی بسر کرے۔ لیکن اسے احساس ہوا کہ ملک کا یہ خطہ پیڑوں کے نہ ہونے کے باعث مرتا جا رہا ہے، اور چونکہ اس کے پاس کرنے کو کچھ اور نہیں تھا، اس نے صورتحال کا ازالہ کرنے کی ٹھان لی۔ چونکہ اس زمانے میں بھی اپنی نوجوانی کے باوجود تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے احساسات کو سمجھ سکتا تھا اور ان کے مزاج کے مطابق ان سے پیش آ سکتا تھا۔ لیکن اس کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نوجوان ہونے کے باعث میں مستقبل کا ادراک محض اپنی ذات کے تعلق سے کر سکتا تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال جاگزیں تھا کہ ہر شخص اسی مسرت کا جویا ہے جس کا میں مشتاق ہوں۔ چنانچہ میرے منہ سے نکل گیا کہ 30 برس میں اس کے اگائے ہوئے 10,000 بیجوں سے نکلنے والے پیڑ کیسے شاندار معلوم ہوں گے۔ اس نے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ اگر خدا نے اسے مہلت دی تو وہ ان 30 برسوں میں اتنے پیڑ اور لگا دے گا کہ یہ 10,000 پیڑ سمندر کا محض ایک قطرہ بن کر رہ جائیں گے۔ اس نے سفیدے کی افزائش کا مطالعہ شروع کر دیا تھا اور اپنے مکان کے نزدیک سفیدے کے پھوٹے اخووں کی ایک نرسری بنا لی تھی۔ اسے بھیڑوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اس کے ارد گرد باڑ لگا دی تھی، اور وہ اخوے بڑھ کر نوخیز پودے بن رہے تھے۔ نشیبی خطوں میں جہاں اس کے کہنے کے مطابق سطح زمین سے چند میٹر نیچے کسی قدر رطوبت موجود تھی، وہ فان کے پیڑ لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگلی صبح ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ اس سے اگلے برس 1914 کی جنگ چھڑ گئی اور میں 5 سال کے لیے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ انفینٹری میں ہونے کی وجہ سے مجھے پیڑوں کے بارے میں سوچنے کا کوئی خاص وقت نہ ملا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ اس واقعے نے مجھے کچھ اتنا زیادہ متاثر بھی نہ کیا تھا۔ میں نے شاہ بلوط کے پیڑ اگانے کو ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے جیسا کوئی مشغلہ خیال کیا تھا، چنانچہ میں پیڑوں کو بھول بھال گیا۔ 1914 میں شروع ہونے والی جنگ جب ختم ہوئی تو میں نے لام بندی کے خاتمے پر ملنے والی چھوٹی سی رقم کو اپنی ملکیت میں پایا اور تازہ ہوا میں سانس لینے کی زبردست خواہش محسوس کی۔ چنانچہ محض اسی مقصد سے میں پھر انہی خطوں کی سیر کے لیے نکل کھڑا ہوا جہاں پہلی بار گیا تھا۔ اس خطے میں خود تو کچھ خاص تبدیلی نہ آئی تھی، لیکن جب میں غیر آباد گاؤں سے آگے نکلا تو مجھے دور بھوری سی ایک دھند دکھائی دی جو پہاڑیوں کی سطح پر کسی قالین کی طرح بچھی ہوئی تھی۔ گزشتہ شام سے مجھے وہ پیڑ اگانے والا چرواہا پھر یاد آنے لگا تھا۔ 10,000 پیڑ بہت جگہ گھیر لیتے ہیں، میں نے سوچا۔ پچھلے 5 برسوں میں نے اتنے سارے لوگوں کو مرتے دیکھا تھا کہ میں آسانی سے تصور کر سکتا تھا کہ الزیار بوفیہ بھی مر گیا ہوگا۔ اس لیے اور بھی کہ جب آدمی خود 20 سال کا ہو تو اسے 50 برس سے زیادہ کے لوگ خسیس بوڑھوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں جو قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے ہوں۔ لیکن وہ نہیں مرا تھا، اس کے برعکس وہ اب تک نہایت چاق و چوبند تھا۔ اب اس نے ایک اور مشغلہ اختیار کر لیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف 4 بھیڑیں باقی بچی تھی، لیکن 100 شہد کے چھتے اس نے جمع کر لیے تھے۔ اس نے بھیڑوں سے اس لیے چھٹکارا پا لیا تھا کہ وہ اس کے پیڑوں کے لیے خطرے کا باعث تھیں۔ بات یہ تھی، جیسا کہ اس نے مجھے بتایا اور جیسا کہ میں خود بھی محسوس کر سکتا تھا، اس نے جنگ کی کوئی پرواہ نہ کی تھی اور پیڑ اگانے کے کام میں مصروف رہا تھا۔ اس وقت تک 1910 میں لگائے گئے بلوط کے پیڑ 10 برس کے ہو چکے تھے اور ان کا قد اس کے اور میرے قد سے اوپر نکل چکا تھا۔ یہ ایک متاثر کن منظر تھا۔ میں اسے دیکھ کر سچ مچ گنگ رہ گیا، اور چونکہ اس نے بھی کوئی بات نہ کی اس لیے ہمارا پورا دن اس کے اگائے ہوئے جنگل میں خاموشی سے چلتے ہوئے گزرا۔ یہ جنگل 3 حصوں پر مشتمل تھا اور سب سے زیادہ پھیلاؤ والے مقام پر اس کی چوڑائی 11 کلومیٹر تھی۔ جب یاد آتا کہ یہ پورا جنگل محض ایک شخص کے جذبے اور کام کا نتیجہ ہے جسے کوئی تکنیکی مہارت بھی میسر نہیں، تو خیال ہوتا کہ تباہی کے علاوہ باقی کاموں میں بھی انسان کی کارکردگی خدا کی طرح مؤثر ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے ہر منصوبے پر عمل کیا تھا۔ یہ بات سفیدے کے ان پیڑوں سے ظاہر تھی جو میرے کندھوں تک پہنچ رہے تھے اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔
बलूत के पेड़ मजबूत और घने हो चुके थे और उस उम्र से निकल आए थे जब वो चूहों के रहमो करम पर थे। जहां तक तकदीर और उसकी तबाहकुन सलाहियतों का ताल्लुक है, अब चरवाहे की तख्लीक को तबाह करना एक वहशतनाक तूफान से कम किसी के बस की बात न रही थी। उसने मुझे फान के पेड़ों के झुंड दिखाए जिन्हें 1915 में काश्त किया गया था, यानी उस वक्त जब मैं वर्दून के महाज पर लड़ने में मशगूल था। उसने उन्हें हर उस नशेबी मकाम पर लगा दिया था जहां उसके ख्याल में सतह के जरा नीचे नमी मौजूद थी। ये पेड़ नौखेज इंसानों की तरह तरोताजा और नाजुक और जिंदा रहने की ख्वाहिश से लबरेज थे। उसकी तमाम तख्लीकात से एक तरह का मुतवातिर खुदकार अमल फूटता महसूस होता था, लेकिन अल्जियार बूफिया को उससे कुछ गरज न थी। वो तो बस मुस्तकिल मिजाजी से अपने हमेशा के सादा और फितरी काम में लगा हुआ था। लेकिन गांव से गुजरकर वापस नीचे जाते हुए मैंने उन चश्मों में पानी बहते देखा जिन्हें तमाम जिंदा आदमियों की याददाश्त में खुश्क ही देखा गया था। जहां तक किसी मुतवातिर खुदकार अमल का ताल्लुक है, उससे ज्यादा गैर मामूली मजहर मेरी नजर से नहीं गुजरा। उस वक्त से पहले उन चश्मों ने आखिरी बार बहुत कदीम जमाने में पानी का बहाव महसूस किया होगा। कहानी के शुरू में मैंने जिन बेरूह गांवों का जिक्र किया, वो कदीम गावलो रोमन देहात की जगह पर बनाए गए थे और उन कदीम देहात के कुछ आसार अब तक मौजूद थे। कदीम आसार के माहिरों को खुदाई में ऐसी जगहों से मछली पकड़ने के कांटे मिले जहां जखीरा करने के तालाबों के सिवा पानी का नाम निशान न था। बीज हवा में उड़कर भी फैलते थे। चुनाचे जब पानी के चश्मे फिर से फूट निकले तो उनके साथ साथ बेदे मजनू, मर्गजार, बाग, फूल और जिंदा रहने का थोड़ा बहुत जवाज भी फिर से पैदा हो गया। लेकिन ये तब्दीली इस कदर सुस्त रफ्तार से आई कि लोग उसके आदी होते गए और उसे एक कुदरती चीज समझने लगे। हिरनों और जंगली सुअरों का पीछा करते हुए उन तन्हा जगहों पर आ निकलने वाले शिकारियों ने बेशुमार छोटे पौधे देखे, लेकिन उन्होंने उसे फितरत की अदा पर महमूल किया। यही सबब था कि किसी ने चरवाहे के काम में मुदाखलत न की। अगर उन्हें उसके इरादों का शुबा भी हो जाता तो वो उसका हाथ रोकने की कोशिश करते, लेकिन किसी को शुबा तक न हुआ। आखिर किसी गांव में रहने वाला या किसी सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कोई शख्स इस पुख्ता इरादे, इस आली दरिया दिली का क्यों कर तसव्वुर कर सकता था। 1920 के बाद से कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जब मैं अल्जियार बोफिया से न मिलने गया हूँ। मैंने कभी उसे कमजोरी या शक की हालत में ना पाया, और खुदा जानता है कि खुदा ने उसे इसका किस कदर मौका दिया था। मैं कभी उन शिकस्तों और मायूसियों का शुमार मुकम्मल न कर पाया जिनसे उसे मुसलसल साबका पड़ता रहा, लेकिन ये बात तो नागुजीर ही है कि इतनी बड़ी कामयाबी को कुछ न कुछ दुश्वारियों से गुजरना और इस नौइयत के जज्बे को मायूसियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना पड़े। उसने एक पूरा साल मेपल के 10,000 पेड़ों की काश्त में लगाया। वो सब के सब मर गए। अगले बरस उसने मेपल को छोड़कर दोबारा सफेदे की काश्त शुरू की, जो इस कदर कामयाब रही कि उसने बलूत के पेड़ों को भी पीछे छोड़ दिया। आदमी उस वक्त तक ऐसे नादिर किरदार का मुकम्मल अंदाजा नहीं कर सकता जब तक वो इस बात पर गौर न करे कि उसने ये पूरा काम मुकम्मल तन्हाई में अंजाम दिया। उसकी तन्हाई इस कदर कामिल थी कि अपनी जिंदगी के आखिर तक पहुंचते पहुंचते वो गुफ्तगू की आदत से बिल्कुल आजाद हो चुका था, या मुमकिन है उसे बोलने की जरूरत ही पेश न आती हो। 1933 में महकमा जंगलात का एक बौखलाया हुआ निगहबान उसके पास पहुंचा और उसे ताकीद की कि वो मकान के बाहर आग न जलाया करे, क्योंकि इससे आस पास के कुदरती जंगलों को खतरा पेश आ सकता है। ये पहला मौका है, सादा मिजाज चरवाहे ने जवाब दिया, कि एक जंगल खुद ब खुद उग आया है। उस वक्त तक वो अपने मकान से 12 किलोमीटर दूर जाकर सफेदे के पेड़ लगाना शुरू कर चुका था, हर रात घर वापस जाने की मशक्कत से बचने के लिए। उसकी उम्र अब 75 साल की हो चुकी थी। उसने नौखेज पौधों के दरमियान पत्थरों की एक कुटिया बनाने का फैसला किया। इससे अगले बरस उसने कुटिया तामीर कर ली। 1935 में एक सरकारी वफद उस कुदरती जंगल के मुआयने के लिए आया। उस वफद में जंगल बानी के कमीशन का एक रुकने पार्लिमान और कई तकनीकी माहिर शामिल थे। बहुत सी खाली खुली बातें की गईं, बहुत कुछ करने का फैसला हुआ, लेकिन दर हकीकत किया कुछ भी न गया, सिवाय एक मुफीद अक़दाम के। जंगल को सरकारी हिफाजत में ले लिया गया और वहां कोयले जलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजह यह कि उन नौजवान और सेहतमंद पेड़ों के हुस्न से मगलूब न होना मुमकिन नहीं था, और तो और रुकने पार्लिमान तक उससे मशहूर होकर रह गया। उस वफद में शामिल जंगल के कई तजर्बेकार निगहबानों में से एक मेरा दोस्त था।
मैंने उसे इस मुहिम्मे का हल समझाया और अगले हफ्ते एक रोज हम अल्जियार बोफिये से मिलने की गरज से रवाना हुए। हमने उसे सरकारी वफद के मुआयने के मकाम से 20 किलोमीटर दूर अपने काम में पूरी तरह मसरूफ पाया। जंगल का तजर्बेकार निगहबान ख्वामख्वाह मेरा दोस्त नहीं था। वो जानता था कि कौन सी चीज क्या है और उसने मुंह से एक लफ्ज न निकाला। मैंने कुछ अंडे पेश किए जो मैं तोहफतन अपने साथ लाया था, और हमने खाने के लिए दस्तयाब तमाम चीजें 3 हिस्सों में बांट ली। खाने के दौरान में और उसके बाद भी कुछ देर तक हम खामोश बैठे उस मंजर को तकते रहे। जिस समत से हम आए थे वहां की पूरी जमीन 6 और 7 मीटर ऊंचे पेड़ों से ढकी हुई थी। मुझे याद आया कि सन 1913 में ये इलाका क्या था। एक मुकम्मल वीराना, पुरअमन और मुसलसल काम, एक सादा तर्ज जिंदगी, बालाई खित्तों की सेहत बख्श हवा और सबसे बढ़कर उसका जहनी सुकून। इन सब चीजों ने उस बूढ़े आदमी को किसी कदर रोबदार तंदुरुस्ती बख्श दी थी। वो खुदा की राह में मेहनत करता रहा था। वो सोचने लगा कि अभी और कितने हेक्टेयर जमीन को वो पेड़ों से ढांप देगा। रवाना होने से पहले मेरे दोस्त ने बड़े सादा और मुख्तसर तौर पर तजवीज किया कि पेड़ों की कुछ और किस्में शायद इस इलाके के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती हैं, लेकिन उसने इस नुक्ते पर जोर नहीं दिया। कुछ भी हो, वो मुझसे कहीं ज्यादा दानिशमंद है, उसने कहा। फिर जब मैं और मेरा दोस्त 1 घंटा चलकर काफी आगे पहुंच गए, तब उसने अपनी बात में इजाफा किया। वो दुनिया का सबसे ज्यादा दानिशमंद आदमी है। उसने खुशी को पाने का कामयाब तरीन तरीका दरियाफ्त कर लिया है। मेरे उस दोस्त की बदौलत न सिर्फ जंगल बल्कि हमारे हीरो की मुसर्रत भी महफूज रही। 3 मातहत मुकर्रर कर दिए गए और उनकी तरबियत ऐसी सख्ती से की गई कि वो लकड़ी काटने वालों की तरफ से आने वाली बड़ी से बड़ी रिश्वत की पेशकश की मज़ाहमत के काबिल हो गए। पेड़ उगाने वाले के काम को 1939 की जंग तक कोई हकीकी खतरा दरपेश न हुआ। उन दिनों गाड़ियां ऐसी मशीनों की मदद से चलाई जाती थीं जो लकड़ी को गैस में तब्दील करती थीं, और लकड़ी की मिकदार हमेशा जरूरत के मुकाबले में कम रहती थी। लोगों ने उन शाह बलूत के पेड़ों को काटना शुरू किया जो 1910 में लगाए गए थे, लेकिन वो बड़ी सड़क से इतनी दूर उगे हुए थे कि उन्हें काटने के खर्च के मुकाबले में मुनाफा बहुत कम हाथ आता था। चुनांचे इस कोशिश को तर्क कर दिया गया। चरवाहे को इस बात का पता तक न चला। वो उस मकाम से 30 किलोमीटर दूर सुकून के साथ अपने काम में मसरूफ था और सन 1914 की जंग की तरह सन 1939 की जंग से भी बेखबर था। मैंने अल्जियार बोफिये को आखिरी बार जून सन 1945 में देखा। उस वक्त वो 87 बरस का था। मैंने उस इलाके में जाने का वही रास्ता इख्तियार किया जो पहले चुना था, लेकिन अब अगरचे जंग के जमाने में हर चीज को तबाह होने दिया गया था, द्योरांस की वादी और पहाड़ों को बस सर्विस के जरिए मुंसलिक कर दिया गया था। मालूम होता है कि उस इलाके से बस में सवार होकर निस्बतन तेजी से गुजरने के बायस मैं उस मंजर को पहचान न सका जो मैंने पैदल चलते हुए देखा था। हम जिन आबादियों से गुजरे उनमें से कई बिल्कुल नई लगती थी। उन बस्तियों के नाम मालूम करने पर ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उसी इलाके में हूँ जो कभी बिल्कुल वीरान और गैर आबाद था। बस ने मुझे वर्गों में उतारा। सन 1913 में इस नाम की बस्ती के 10 या 11 मकानों में सिर्फ 3 अफराद रहते थे। वो अक्खड़ और बदमिजाज लोग थे जो एक दूसरे से नफरत करते थे और जिनका गुजारा अखलाकी और मादी तौर पर करीब करीब तारीख से पहले की हालत में जानवरों को जाल लगाकर पकड़ने पर था। उनके इर्द गिर्द के मकान जंगली जड़ी बूटियों से ढक गए थे। वो किसी उम्मीद के बगैर जिंदगी बसर कर रहे थे और मौत के सिवा किसी चीज के मुंतजर न थे। ऐसी सूरत हाल नेक दिली के लिए क्यों कर साजगार हो सकती थी, लेकिन अब सब कुछ, यहाँ तक कि मौसम भी तब्दील हो चुका था। पहले सफर में मैंने हवा के जिन तेज और खुश्क झक्कड़ों का सामना किया था, अब उनकी जगह नर्म और खुशबू से भरी हवा चल रही थी। ऊपर पहाड़ियों पर से पानी के बहने की सी मुसलसल आवाज सुनाई दे रही थी। ये जंगल से गुजरती हुई हवा की आवाज थी, मगर सबसे ज्यादा हैरान कुन आवाज उस सचमुच के पानी की थी जो एक नशेब में बह रहा था। मैंने देखा कि गांव के लोगों ने वहां एक फव्वारा बना लिया है। ये फव्वारा बड़े वफूर के साथ उबल रहा था और इस बात ने मुझ पर सबसे ज्यादा असर किया। उसके पास उन लोगों ने एक लीमू का पेड़ लगा दिया था जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल की होगी। अब तक वो खासा तवाना हो चुका था। असरे नौ जी उठने की एक नाकाबिले तरदीद अलामत। वर्गों में कुछ ऐसे कामों के भी आसार दिखाई दिए जो उम्मीद के बगैर हाथ में नहीं लिए जाते। गोया उम्मीद भी लौट आई थी। खंडरों को साफ सुथरा कर लिया गया था।
शिकस्ता होती हुई दीवारें गिरा दी गई थी और 5 पुराने मकान असरे नौ तामीर कर लिए गए थे। गांव में अब 28 अफराद रहते थे, जिनमें 4 नौउम्र जोड़े भी शामिल थे। नए मकानों की ईंटें ताजा चुनी हुई थीं और उन्हें बागीचों से घेर दिया गया था, जिनमें तरकारियां और फूल कतारों में साथ साथ उगाए गए थे। गोभी गुलाब के पौधों में उलझी हुई, दरियाई घास मैमून के दोष बदोश, सिलेरी सागर फूल के साथ ये एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां रहने को आदमी का जी चाहे। मैं पैदल आगे बढ़ता रहा। जंग अभी खत्म ही हुई थी और जिंदगी पर जंग के जमाने की पाबंदियां अभी बरकरार थीं, लेकिन जुजामी लेजारस गोया अपनी कब्र में से जी उठा था। पहाड़ों की निचली ढलानों पर मुझे जौ और राई की छोटी छोटी नौखेज खेतियां दिखाई दे रही थीं और तंग वादी में बहुत दूर मर्गजारों की सब्ज धुंधलाहट। उस वक्त से अब तक के 8 बरस के अरसे में वो पूरा इलाका सेहतमंद और खुशहाल हो चुका है। जिन मकामात पर मैंने सन 1913 में खंडरों के सिवा कुछ न देखा था, वहां अब साफ सुथरे हमवार पिलस्तर वाले फार्म हाउस बने हुए हैं, जो एक मसरूर और आरामदेह जिंदगी की शहादत देते हैं। कदीम चश्मे जंगलों की महफूज रखी हुई बर्फ के पिघलने और बारिश के बरसने से पानी हासिल करके एक बार फिर रवा हो गए हैं और उनके पानी को एहतियात से जमीन की सैराबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर फार्म के करीब मेपल के झुंड के दरमियान पानी फव्वारों वाले तालाबों के किनारों से बहकर पुदीने के खुनक कालीन पर फैल जाता है। एक एक करके तमाम गांव नए सिरे से तामीर हो रहे हैं। लोग मैदानी इलाकों से, जहां जमीन बहुत महंगी है, नकले मकानी करके यहां उठ आए हैं और उनके साथ नौजवानी, तहर्रुक और मुहिम जोई की रूह भी यहां आ बसी है। रास्तों पर और गलियों में ऐसे मर्द और औरतें मिलती हैं जो खुशहाल हैं। ऐसे बच्चे बच्चियां मिलते हैं जिन्हें खुलकर हंसना आता है और जिन्होंने पुराने देहाती खेलों और मशगलों की खुशी को नए सिरे से दरियाफ्त कर लिया है। अगर इन नए आने वालों में पुरानी आबादी को भी शामिल कर लिया जाए, जिन्हें उनकी जिंदगी के खुशगवार हो जाने के बाद अलग से पहचानना मुमकिन नहीं रहा, तो कोई 10,000 अफराद अपनी मुसर्रतों के लिए अलजियार बोफिये के एहसानमंद हैं। जब मैं इस हकीकत पर गौर करता हूं कि एक आदमी महज अपने सादा जिस्मानी और अखलाकी वसाइल के बलबूते पर रेगिस्तान से कनान जैसी उस सरजमीन को निकाल लाने में कामयाब हुआ, तो मैं ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि इंसानी सूरत हाल हर शय के बावजूद अमूमी तौर पर काबिल तारीफ है। और जब मैं उस तमाम इस्तकलाल, दरिया दिली, हौसला मंदी और कुशादा ज़र्फी को शुमार करता हूँ जिसके बायस ये नताइज मुमकिन हुए, तो मैं उस पुराने ढंग के गैर तालीम याफ्ता किसान के लिए बेपाया एहतराम से भर जाता हूँ, जिसने किसी की मदद के बगैर एक ऐसी कोशिश को मुसलसल जारी रखकर एक कामयाब इख्तिताम तक पहुंचाया जो खुदा को सजावार है। अलजियार बोफिये सन 1947 में बानो के अस्पताल में एक पुरसुकून मौत से हमकिनार हुआ।